this young girl. She was 26. She was working at Ernst and Young, and work pressure की वजह से she ended up losing her life. I see a lot of patients, and a very common problem which every patient would talk about is, सर मैं बहुत थका हुआ हूँ. आप क्यों थके हो? आपको डिफिशियंसी है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन है, आपको स्ट्रेस है. तो रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड आई बिलीव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू टॉक. व्हाट पेशेंट्स आई गेट इज 4th और 5th स्टेज कैंसर्स. मेटास्टेसिस हो चुका है, कीमोज हो चुके हैं, रेडियोज हो चुका है, अब आप क्या कर सकते हो? लाइक मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी कर सकता हूँ. So what is Ayurveda's take on caffeine? नो. आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि अच्छे रोगी के गुण क्या हैं. जैसे एक अच्छे डॉक्टर की क्वालिटीज क्या है ना, ही शुड बी स्केल, ही शुड बी clean, tidy, he should be patient friendly also. This is a very common thing which we all know. But the same way, there has to be a patient also. उस patient का जो first रोगी गुण है, that is obedience, that he has to obey what you're saying. Ayurveda is so selling in abroad, I cannot tell you. It's like crazy, crazy. अगर आपको ये लगता है शिलाजीत men के लिए, absolutely wrong. जिन गर्ल्स को बहुत ज़्यादा painful periods होते हैं, जी. PCOD भी है, शिलाजीत is good for them. Does Ayurveda particularly recommend being vegetarian? आयुर्वेद में भी there are certain diseases जहाँ पे कहा गया कि आपको मीट या नॉनवेज. Hi, I'm Divya Jain, and I'm the founder of Safe Educate and Because She Can. I'm a social entrepreneur who's been working in the skilling space for over 14 years. Today, we have a very interesting guest. हमारे पास आज आए हैं Dr. Saurabh Sharma. He's a world-renowned Ayurvedic doctor, and he specializes in something called pulse diagnosis, which is नाड़ी परीक्षण. इस कॉन्वर्सेशन में हमने बात की है आयुर्वेदा की, उसकी बेसिस की, where has it actually come from. It talks about the different body types that we have, Vat, Pitta, Kapha, and how your body type and the energy levels in your body can dictate how your body works. कैसे अपनी body को understand करके you can use different types of herbs, different types of methods that can actually make you more energetic, increase your focus, and live a healthier life. We've talked about the limitations of Ayurveda. We've talked about a lot of jadi booties. We've talked about herbs like shilajit, like brahmi, like chavanprash, like ashwagandha. And कैसे आप इसको incorporate कर सकते हो अपनी diet में, अपनी life में. Also, why caffeine is bad for you and what can you replace it with. So stay tuned. It's an incredibly exciting episode that's going to give you a lot of food for thought and a lot of insights on how you can live your life better. The episode starts in 3, 2, 1. A very warm welcome, Dr. Sharma. Very excited to have you on our studio today and to have this conversation on Ayurveda. ये है क्या, इसकी साइंस क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या कहती है और कैसे ये रेलेवेंट है आज के दिन में हमारी लाइफ्स में और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करने के लिए. Thank you, Divya ji, for inviting me here. How to live a good, healthy life. This is Ayurveda. There's nothing about medicines, nothing about treatments, nothing about, let's say, therapies or massages. There are a lot of things going on. But Ayurveda is basically our ancient science. Okay. Let me use the typical word ancient Vedic science. Now, Vedas means the ancient knowledge जो हमारे सेंट्स से थी. जी. So 4 वेदास है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा. जी. सो आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का एक पार्ट है. उसमें सब कुछ लिखा हुआ है हमारी हेल्थ से रिलेटेड कि आपको अच्छा हेल्दी कैसे रहना है. सो दिस इज एज बैक 5000 ईयर्स बैक. आई बिलीव उससे भी ज़्यादा होगा, बट ऐसा मैथोलॉजिकल हम सोचते हैं कम से कम 5000 साल तो हो गई. बिकॉज आयुर्वेद की उत्पत्ति यानी जो स्टार्ट हुआ वो ब्रह्मा जी ने किया. नाउ इमेजिन ब्रह्मा जी, सो हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक. Now, Ayurveda is very important if you really want to live healthy life. Okay, if you want to take medicines, then it is not Ayurveda. If you want to live healthy life, so आयुर्वेद में प्रयोजन यानी आयुर्वेद का जो एम है उसके बारे में कहा जाता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य लक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम. Okay. It means स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा. It means promotion of your health and prevention from the diseases. But if you get sick, bacteria, viruses, changing weather, changing season, सब कुछ होता है तो उसकी वजह से if you get sick, if you get any disease, then you take some herbal preparations. So the first aim of Ayurveda is to promote your health and prevent you from any changes, any diseases, any imbalances, anything like this. So the herbal part of it या जो आपकी जड़ी बूटी है या जो आपकी medication है जी. that is actually a smaller part
of Ayurveda that comes later. एग्जैक्टली एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एंड टू बी वेरी प्रैक्टिकल विद, तो जो भी ये जड़ी बूटियां, ये मेडिसिन का हम दे रहे हैं, ये बेसिकली हमारे स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स है जो हमारे किचन से निकले हैं। कुछ किचन से निकले हैं, कुछ गार्डन से निकले हैं, और जो थोड़े बच गए हैं वो फॉरेस्ट से निकल गए हैं, और तो कहीं से कुछ आया नहीं है। देयर इज नथिंग प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज ऑल्सो, देयर इज नो केमिकल ऑल्सो, बट ये सब तो हमारी ही जड़ी बूटियां या वो हमारी किचन रेमेडीज हैं, जिसके हम परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस बना के कुछ प्रिपरेशंस या कुछ मेडिसिन बनाते हैं, जो कि आपके इम्बैलेंसेस को ठीक करती है, आपकी डिजीजेस को ठीक करती है। आपने जड़ी बूटी की बात की एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगी जो सबसे नोन जड़ी बूटी है एंड यू नो द मिस्टिकल जड़ी बूटी इज़ योर संजीवनी बूटी। तो जब आप रामायणा देखते हैं, दशहरा आने वाला है, सो यू नो वन आइकॉनिक सीन इज़ हनुमान जी गए हैं, वो संजीवनी बूटी लेके आए हैं और उसके यूज़ से इमीडिएटली की सारी वो ठीक हो गए हैं लक्ष्मण जी। So I would love to get into ये संजीवनी बूटी है क्या? What was so mystical about it? Is that a part of Ayurveda? Like what was it? डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेद में एक वर्ड कहा जाता है जिसे बोलते हैं रसायन। लेट मी यूज द वर्ड रसायन। सो जो संजीवनी बूटी थी वो भी रसायन था। सो रसायन का मतलब था रस प्लस आयन। रस मीन्स देर आर 7 धातुज इन अवर बॉडी। Okay. रसादि धातुज वी कॉल इट, लाइक रसा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इट्स इन संस्कृत बट इंग्लिश में भी वही है। एंड द लास्ट इज ओजस। ओजस इज बेसिकली योर इम्यूनिटी, योर वाइटैलिटी। Right. सो ये सब रसायन है। तो जो हनुमान जी गए और संजीवनी बूटी लेके आए, वो दैट वाज ओके, दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी जो हुआ एक्चुअली, बट देयर आर सो मेनी रसायनास एक्चुअली। लेट मी जस्ट टेक वेरी सिंपल थिंग्स। अश्वगंधा, जी, सबने नाम सुना, जी, इट इज अ रसायन। आंवला, आई थिंक एवरीवन नोज। हाँ, जी, एलोवेरा, एलोवेरा भी जी, शानदार, ये सब रसायन है। यानी ये आपकी तो उसमें भी क्या हुआ था बेसिकली, वो संजीवनी बूटी लाए, ओके, वहाँ टाइम ड्यूरेशन, टाइम फ्रेम थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ कि कितने टाइम में वो हुआ, बट एक्चुअली हुआ यही था कि वो रसायन लेके, जो संजीवनी बूटी थी वो रसायन है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आयुर्वेद में भी एक दवा ऐसी आती है हमारी क्लासिकल मेडिसिन, जिसका नाम है संजीवनी बटी, अच्छा, है एक्चुअली ऐसा। okay. सो And दैट what इज, exactly is सो that? संजीवनी बट्टी का जो इंडिकेशन है, जो बेसिकली यूजेस है, वो बेसिकली फीवर के लिए। सो समवन इज हैविंग अ लॉन्ग ग्रेड, हाई ग्रेड फीवर फॉर अ क्रॉनिक टाइम, अ लॉन्ग टाइम, देन वो दी जाती है। बट देर आर, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देर आर सो मेनी रसायन इन आयुर्वेद। ये सारे रसायन ही बेसिकली आपकी एक तरह की संजीवनी बूटी हैं। जी, बट अगेन इंपॉर्टेंट वो है, क्यों? क्योंकि हनुमान जी जो थे, हनुमान जी केवल संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए, बट ही हैड नॉलेज ऑल्सो अबाउट इट, है ना। हालांकि उनको बताया उन्होंने कि भैया लेके उनको मिली नहीं, कौन से वाले, तो पूरा पहाड़ उठा लाए। बट बेसिकली वो जो नॉलेज है, जो इंटेलेक्ट है, जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो चेतना संजीवनी बूटी से मैच करी। इसीलिए मैं आपको एक छोटा सा एक इंस्टेंट भी सुनाता हूँ कि आयुर्वेद में जब जो दवा बनाई जाती है या जो ली जाती है, लेट मी टेक अ सिंपल एग्जांपल, आंवला। अगर हम जी, आंवला भी तोड़ रहे हैं या अश्वगंधा भी हम तोड़ रहे हैं ना, तो उसके लिए एक मंत्र है। अच्छा, ऐसे प्लक नहीं करता, ना 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 ना। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज टॉकिंग टू माय पेशेंट्स कि भाई दवा अच्छी कंपनी की लो, जहाँ पे वैदिक तरीके से वो दवा बनी हो, तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको घर से लेते हैं, जब आप या कोई भी घर में कुक, फीमेल्स या मेल्स कोई भी कुक करते हैं, तो हम हैंड वॉश करते हैं, हाँ, रिचुअल्स करते हैं अच्छे से करके, और हमेशा प्रे करते हैं। हम खाना खाते हैं तो प्रे करते हैं। उसी तरीके से अगर आयुर्वेद में कोई भी दवा, जड़ी बूटी तोड़ी या उखाड़ी जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी मेडिसिन, और या फिर किसी पेशेंट को दी जाती है, तब भी पहले उससे चैंटिंग होती है, एक चैंट किया जाता है मंत्र उससे, सो दैट जो हीलिंग पावर है वो उसमें आए। सो वो जो संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए, चाहे मैं जो आज बात कर रहा हूँ अश्वगंधा की, रसायन की, एलोवेरा की, या किसी भी चीज़ की, ये सारी चीज़ें रसायन हैं जो कि हमारी बॉडी में लॉन्जिविटी देती हैं, और इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, और बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाती हैं। ने बोला कि यू नो चैंटिंग करना चाहिए, यू इट हैज़ टू बी डन इन द राइट वे। So one of the questions that's in my mind is what is the connection between Ayurveda and spirituality, right? कि वो कितनी important है because हमने शायद आयुर्वेदा को we have started treating it like modern medicine almost, right? कि जैसे आप क्रोसिन लेते हो, जैसे आप एस्पिरिन लेते हो, वैसे ही हम बोलते हैं कि ये ले लीजिए या आयुर्वेदा में ये मेडिसिन ली है. So I think in our minds we've started equating modern medicine and Ayurveda. एक हमारे को ना एक हैबिट हो गई है. Maybe that science has trained us in a way. सुबह लो, शाम लो, ये लो, वो ले. From what you're saying is, you know, there seems to be a spiritual component of Ayurveda. And what is that and how strong is that? दो चीज़ें, दो तीन एस्पेक्ट डिस्कस कर देंगे। फर्स्ट एक्सपेक्ट, शायद हम सभी लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि सर्वनाम द्रव्याणि पंचभौतिकत्वानि, इट मींस ऑल द द्रव्यास, लिविंग और नॉन लिविंग, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। हाँ, हम पांचों में जाते हैं, एयर, फायर, एथर, वाटर, स्पेस एंड अर्थ, राइट। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। आई हैव टू बी वेरी क्लियर
No, no, about it absolutely. No is religion, just spirituality. spiritual, your body, Now the your mind. point is Yeah. this, आयुर्वेदा में हमारी संहिताओं में लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूल उत्तमम. It means जिसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मोक्ष सो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की इच्छा है वो आयुर्वेद के रूल्स फॉलो करे. अब यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी वर्ड को थोड़ा सा मैं फाइनल वे में समझाता हूँ. यहाँ स्पिरिचुअलिटी का मतलब कनेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब डेडिकेशन है. बिकॉज आयुर्वेदिक मेडिसिन इज नॉट लाइक दिस पॉप अ पिल एंड देन यूर अ सुपरमैन. इट्स नॉट लाइक दिस. जब हम आयुर्वेद की दवा की या किसी औषधि की या इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन ऑल्सो, please don't think that you're going to pop the pill and that's over. No, we're always talking about the diet, daily routine, these parhez which you're always talking. In fact, I always tell to my patients कि अगर परहेज नहीं कर सकते then you're wasting your time. Because 2 दिन में ठीक हो जाओगे but 4 दिन में वापस आओगे, which I don't appreciate that you're coming to me again and again. दिस इज अ हेल्थ साइंस. सो जब स्पिरिचुअलिटी की बात है तो आपका कनेक्शन, आपका एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ. आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि अच्छे रोगी के गुण क्या है. इमेजिन, Acha. इमेजिन, So even इमेजिन as a patient, एज अ you need to पेशेंट. you need to have या something. या देयर आर, जैसे एक अच्छे डॉक्टर की क्वालिटीज क्या है ना, ही शुड बी स्केल्ड, ही शुड बी क्लीन टाइडी, ही शुड बी patient friendly also. This is a very common thing which we all know, but the same way there has to be a patient also. उस patient का जो first रोगी गुण है, that is obedience, that he has to obey what you're saying, he has to accept what you're saying. Going to a counter, going to a medication counter, buying a pill and eating it, it's not going to Not work for sure. So this is very important that there has to be a connection between the doctor, between the patient, between the medicine. If these three things are together, then only the patient gets healed up. But I really like what you're saying, Dr. Saab, ki I think as a generation, as the current lifestyles we are leading, we've got very used to these quick fix solutions, right? And हमारे को लगता है कि हम बस कुछ कर लेते हैं और वो ठीक हो जाएंगे. But I think it's very, very important for us to understand that at some point we need to take responsibility. Let me give you a very simple example. Skin पे प्रॉब्लम हुआ, एक्जिमा हो गया, हम कहीं जाते हैं, सब देखो एक्जिमा हो गया, you go to a medical store, you buy a cream, you apply it and it's gone. Right. You're happy. A week after कहीं और हो गया, अरे ये क्या हो गया, then उसको भी क्रीम लगा के फिनिश कर दिया, then after कहीं और हो गया. So you are not basically getting rid of the disease, you are just suppressing the symptom. So this skin issue is just a manifestation of your disease which you are keeping your eyes closed, blindfoldedly just following कि medicine ले लो ठीक हो जाएगा, anti-allergic ले लो, antihistamine ले लो. That's, I'm sorry, but somehow that's not the treatment. On the acute levels, okay, it is helping you for a day or two, but then after in the longer run, it is not going to help you because ये कहीं ना कहीं अंदर toxin भी create कर रहा है. You know, Dr. Saab, आजकल न्यूज़ में है about this young girl. She was 26. She was working at Ernst and Young, and work pressure की वजह से she ended up losing her life. You know, hustle culture is very, very real. I think for a lot of the young generation, stress are at very high levels. What is something that Ayurveda recommends for them? You know, of course, in terms of lifestyle, but also in terms of herbs and supplements. What is it that you could introduce, include in your diet to make that better? Okay, so this can be a pressure from the office, this can be a pressure from the relationship, this can be a pressure from the body also, because I see hundreds of patients every day all over the world. And when I see the pulse, because in Ayurveda we are always talking about the pulse diagnose, Vat Pitta Kapha का imbalance है. So at times you yourself cannot make it really कि यार problem कहाँ पे है. I see a lot of patients and a very common problem which every patient would talk about is सर मैं बहुत थका हुआ हूँ. आप क्यों थके हो? आपको डेफिशिएंसी है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन है, आपको स्ट्रेस है, आपका इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल है. तो रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड आई बिलीव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू टॉक. Talk with your friends, talk with your family, talk with your elders, talk with your colleagues, but please talk with the doctor also. I always say patients, when a patient come to me, believe me or not, at times people are fighting outside, sir कितना टाइम लोगे, हमारा नंबर कब आएगा. We need to talk. I need to understand what is the problem. If I'm not able to understand what is the problem, what is the underlying cause, I won't be able to help. Okay, when I take consultation, I always talk about the diet and daily routine, which almost 100% people are doing something wrong. Either they are having wrong food combinations or they are eating whatever, they are sleeping whatever time. You know what happened with this girl? You know, this is not just a one day story. There has been layers of stresses. So it's accumulated stresses which in the end bursted out.
Right. And you It's can't just blame it कि काम no, पे no, no. है, It's impossible. but it's something It's that impossible. comes. देखिए स्ट्रेसेस बहुत सारे एक्यूमुलेट होते हैं, तब वो जब आउटबर्स्ट होता है तो किसी ना किसी तरह से होता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है दैट यू टॉक टू योर डॉक्टर. देयर आर सो मेनी थेरेपिस्ट्स आल्सो आर विद द डॉक्टर्स एंड यू टॉक टू देम, फाइंड आउट द सॉल्यूशन. ओके, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, व्हाट इज द हर्ब? ओके, Right. सो देयर आर मेनी हर्ब्स. ओके, लेट मी टेक अ सिंपल एग्जांपल. अश्वगंधा वी ऑल नो वेरी वेल, जी. कि अश्वगंधा बहुत अच्छा होता है. What is ashwagandha? ना अश्वगंधा नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि केवल स्ट्रेस के लिए, जी. जी. या ये भी सोचते हैं ताकत के लिए. नो, यू हैव टू जी. बिकम, जी. नाम से पता है ना अश्वगंधा, अश्व मीन्स Ashwagandha. घोड़ा, I mean, घोड़े the की तरह. reason I'm asking is कि वही होता है, स्ट्रेस है, अच्छा एक काम करिए, सुबह अश्वगंधा ले लो, start your day with that. That's your standard Instagram सो देखिए remedy. एग्जाम्पल, अब आपने थर्ड मुझे बोला स्ट्रेस है सुबह ले लो. जी. कुछ लोग बोलते हैं नींद नहीं आती, अश्वगंधा रात को ले लो, नींद अच्छी आ जाएगी. सम जी. पीपल से जब ब्लड प्रेशर आई है, अश्वगंधा इसके ले लो. सो अश्वगंधा के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, बट यस डेफिनेटली अश्वगंधा इज वाता पैसिफाइंग. नाउ अंडरस्टैंड वात पित्त कफ थोड़ा सा. तो जब स्ट्रेस एंजाइटी होता है तो कहीं ना कहीं वाता मीन्स द एयर, दैट एलिमेंट इज डिस्टर्ब, उसके लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा है. तो वात को कम कर देगा. प्राणवायु इज हियर इन द ब्रेन, सो प्राणवायु को रिलैक्स करेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा, आप काम हो जाओगे. उसके साथ भी बहुत सारी हर्ब्स हैं, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, इवन शतावरी वर्क्स वेरी वेल. सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स, बट अगेन आई वुड ऑन दिस पोडियम आई वुड लाइक टू सजेस्ट एवरीवन, don't take it just like this. It's better to meet a doctor at least once so that you Right. find out what are your imbalances and then you can follow. And मैं इनफैक्ट सभी लोगों को बोलता हूँ कि देर आर 6 ऋतु हैं, 6 ऋतु हमारे देश में. सो जब ऋतु चेंज होती है तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है, हमारा फूड चेंज होता है, हमारी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है और वो चेंज करनी चाहिए. एक छोटा सा एग्जाम्पल, रोज पेशेंट आके बोलते हैं सर मैं तो रोज सुबह आंवला खाता हूँ. भाई आंवले का सीजन नहीं है, तुम कहाँ से आंवला खा रहे हो, मुझे ये बताओ ना. सर समझ में आंवला आता है? नहीं आता. आंवला आता है विंटर्स के अंदर, तभी उगता है. Then. तो वो कहाँ है? वो कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू फिनिश है. आंवला खा के खुश हो रहे हो आप. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सीजनल खाएं, हम टाइम से खाएं, हम गुड फूड कॉम्बिनेशंस में खाएं. और जो अभी आपने बोला कि लाइफस्टाइल पे थोड़ा सा काम करें जिससे कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो ही ना, कि दैट यू नो एंड अप हैविंग सच काइंड ऑफ. There's a personal story, Dr. Saab. My husband, उनको ना touch wood. He has च्यवनप्राश. मतलब ना वो दशहरा खत्म होते ही उन च्यवनप्राश चालू हो जाता है. Now there are of course 2-3 brands. पहले डाबर की होती थी, अब 2-3 वो है. एंड एक बिलीफ है कि हम च्यवनप्राश खाते हैं तो ना सर्दी नहीं लगती, बीमार नहीं लगती. I unfortunately can't stand the taste of च्यवनप्राश. तो इतना ट्राई किया है, but I've never had it. Okay. And now, like my daughter and my son, so my daughter has it religiously, Okay. and my son is kind of like me, थोड़ा चोरी करते हैं. Okay. Okay. But there is this innate belief कि winters में च्यवनप्राश खाएंगे तो सर्दी से you won't get affected by it. How true is that? च्यवनप्राश पूरे साल खाना चाहिए. अच्छा, so that is not seasonal. No one is talking about it. Okay. च्यवनप्राश पूरे साल खाना चाहिए. But again, quality is very important because च्यवनप्राश is it's a kind of a very interesting preparation. थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ. च्यवनप्राश में जब च्यवनप्राश बनता है तो उसके ऊपर प्रक्षेप द्रव्य डाले जाते हैं. प्रक्षेप द्रव्य में देयर आर सर्टेन पाउडर्स ऑफ सम हर्ब्स, जैसे इलायची का डाल दिया आपने, दालचीनी डाल दिया, ब्लैक पेपर डाल दिया, केसर डाल दिया. आपने देखा होगा मार्केट में च्यवनप्राश स्टार्टिंग फ्रॉम 400 to 4,000 रुपीज, Right. है ना. ये वेरिएशंस हैं. Right. तो इफ यू बाय अ गुड कंपनी, ओके, अ डिसेंट कंपनी, प्लीज डोंट गो 4,000 वाला सबसे बेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ यू बाय डिसेंट कंपनी देन च्यवनप्राश इज समथिंग विच, एक शब्द बोला था मैंने अभी, शायद सुना होगा आपने, रसायन, याद आया है ना? संजीवनी बूटी या ओके. Yeah, सो sir. रसादी धातुओं की पुष्टि करने वाला रसायन जी. जो हमारी बॉडी में लॉन्जेविटी देता है, स्ट्रेंथ देता है, वाइटैलिटी, इम्यूनिटी देता है, दैट इज रसायन. सो च्यवनप्राश भी एक रसायन है. और जो आपने बोला बड़ा अच्छा बोला, पहली बार किसी ने बात बोली, बिकॉज नॉर्मली लोग बोलते हैं च्यवनप्राश करने से ताकत आती है, इम्यूनिटी आती है, बट आपने जो वर्ड बोला कि च्यवनप्राश करने से सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा. जी. सो हर मेडिसिन का, हर प्रिपरेशन का, हर हर्ब का एक इंडिकेशन है. सो अकॉर्डिंग टू चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता, जो जो च्यवनप्राश का इंडिकेशन है वो बेसिकली कास रोग यानी क्षय कास यानी जुकाम खांसी के लिए ही है, बट ओवरऑल इम्यूनिटी मेंटेन करता है बहुत अच्छे से. तो ये पूरे साल खाना चाहिए. अब आपने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली, बेटा बेटी वाली, हस्बैंड वाली और आपकी वाली. सम पीपल कैन नॉट हैव द टेस्ट. ओके, लेट्स डोंट से कि ये आपको लग रहा है. लेट्स टॉक अबाउट ABC 3 पीपल. जी. च्यवनप्राश में शुगर यूज होती है, जी. वो च्यवनप्राश है, ले है यानी खाने का है. सो यू मस्ट हैव फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल जिनको च्यवनप्राश का या सुना होगा च्यवनप्राश उल्टी जैसी आती है. जी.
ओके Absolutely. मैंने आपका नहीं बोला मैंने एक पर्सन का बोला ABC ओके का भी, ABC ओके okay with ऑलराइट that, yeah. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु लाइक च्यवनप्राश लाइक किसी उनको बहुत ज्यादा पसंद है वो तो लेके बैठे खाते रहते रहेंगे, हैं खाते रहेंगे. एग्जैक्टली Yeah. देयर आर सम पीपल फॉर देम इट इज वेरी हॉट ऐसे भी देखोगे इट्स टू जी, हॉट जी, आई कैन नॉट हैव इट जी, स्वेटिंग होने लगता है जी. नाउ दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस क्यों Beautiful. एवरीवन किसी को वात है किसी का पित्त है किसी का कफ है लेट मी गिव अ सिंपल एग्जांपल जो कफ प्रकृति वाला होगा कफ का मतलब जिसमें वाटर एलिमेंट ज्यादा है सो वो सेटल्ड होगा इजी होगा च्यवनप्राश में हनी डलता है कुछ मसाले डलते हैं तो च्यवनप्राश इज ऑलवेज वार्मिंग तो जो एक वो मिथ है ना कि केवल विंटर्स में खाना चाहिए वो इसीलिए क्योंकि सर्दियों में आप गर्म चीज खा सकते हो वैसे नहीं खा सकते सो वो वार्मिंग है तो कफ प्रकृति वाला उसको खा लेगा उसको अच्छा भी लगेगा इम्यूनिटी बढ़ेगी उसकी जो पित्त वाला है अगर उसमें पक्षी द्रव्य में ब्लैक पेपर या ना किसी कोई भी इस तरह की कोई वार्मिंग ऑफ डली तो वो नहीं खा पाएगा वो बोलेगा आई कैन नॉट It's not working for इट्स me. नॉट वर्किंग इट्स टू हॉट फॉर मी आपने देखा होगा छोटी छोटी चीजें लोगों को हॉट करती है इनफैक्ट अश्वगंधा भी लोगों के लिए बहुत वार्मिंग होता है समटाइम्स और जो वात प्रकृति वाला है वो कंफ्यूज ही रहेगा बोले कभी खा लेता हूँ कभी नहीं खाता मूड के ऊपर डिपेंड है ऐसा कुछ खास नहीं है सो हर इंसान की एक प्रकृति अलग है वात पित्त कफ वो अलग है और उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें होती है नाउ कमिंग बैक टू द च्यवनप्राश मैंने अपना स्टेटमेंट दिया कि पूरे साल खा सकते हैं बट अगेन बार बार मैं डॉक्टर्स को प्रमोट नहीं कर रहा गाइज बट मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे हम रूटीन हेल्थ चेकअप्स के लिए जाते हैं आपको जाना चाहिए जिससे समझ में आए च्यवनप्राश भी जब मैं अगर किसी पेशेंट को च्यवनप्राश देता हूँ तो मैं नहीं बोलता कि जाओ फार्मेसी से च्यवनप्राश ले लो जी. आई वुड नेवर डू दिस आई विल चेक द प्रकृति आई विल चेक द अग्नि लेवल्स हम 5 लोग हैं अग्नि लेवल्स का मतलब हर किसी का डाइजेशन कैपेसिटी डिफरेंट है आपका डिफरेंट इनका 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 सबका डिफरेंट है देर आर सर्टेन लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल मे बी आई एम गोइंग आउट ऑफ द सब्जेक्ट बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंटॉलरेंस के बड़ा बात होता है आजकल हाँ Right. लैक्टोज इंटॉलरेंस I know, ग्लूटेन I इंटॉलरेंस just did this allergy test. वो 400 they put 400 different these things from milk, ये नहीं है तो खाऊंगा क्या मैं wheat, amaranth. वो 400 के मेरे को green, red और orange बताए इमेजिन थे ओके कि what अच्छा is टेल okay, मी what वन is थिंग not दिव्या जी okay. 10 साल पहले ये था मैं 10 साल बोल रहा हूँ 100 5,000 साल नहीं 10 साल पहले तो कुछ भी नहीं था नहीं. साइंस इज मेकिंग इट थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड इसको सिंपल अंडरस्टैंडिंग में समझो यार कि यार अगर मैं मेरे को इससे एलर्जी है मुझे क्रोन्स डिजीज ये सब कुछ होता है ये सब है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मेरा डाइजेशन वीक है सिंपली अंडरस्टैंडिंग आयुर्वेद में वी नेवर टॉक अबाउट एलर्जीज और इंटॉलरेंसेज वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट यार कहीं ना कहीं तुम्हारा डाइजेशन वीक है इसलिए यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट Interesting. वात पित्त कफ अगेन वापस आ जाते हैं कफ प्रकृति वाला है वो 4 ग्लास दूध पी जाता है पित्त वाला है उसको एसिड होकर रिफ्लक्स होकर बाहर आ जाता है वात वाला है वो पीता है तो उसको डायरिया हो जाता है सो हर किसी का बॉडी टाइप उसी तरह अगर आपको कोई भी एलर्जीज है या इंटॉलरेंस है दिस इज बेसिकली योर अग्नि इंपेयरमेंट सो जब हम चेक करते हैं पल्स को वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट का आपका अग्नि कैसा है मीन्स मॉडर्न लैंग्वेज में बोलूँ आपका गट हेल्थ कैसा है You know, आपने बोला कि आप नर्व्स देखते हैं. I'd love to understand कि नफ्स से आपको कैसे पता चलता है लाइक व्हाट आर यू एबल टू रीड व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द पल्स एंड द बॉडी और कैसे आप नफ्स देख के बता सकते हैं. दिस नर्व्स इज बेसिकली योर पल्स सो वी आर नॉट चेकिंग द पल्स रेट हाँ नॉर्मली क्या होता है पल्स का मतलब हम समझते हैं पल्स रेट हार्ट की रिदम चेक करें नो हमारी बॉडी जो पूरी फिजियोलॉजी है वो वात पित्त कफ थ्री दोषस वाता पित्त और कफ उसमें मैनिफेस्ट होती है तो जब हम ये चेक करते हैं जब हम ऐसे अभी आप खुद ही करके देखो ओके इफ यू पुट जस्ट अटेंशन बिकॉज आयुर्वेद इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अटेंशन 3 फिंगर्स रखना है यहाँ पे फिंगर्स फील होगा ये स्टेरॉइड प्रोसेस है आपका हड्डी उठी दिख रही है आपको ये वाली नो 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 कम है कम सो दिस इज योर स्टेरॉइड प्रोसेस हम्म. ये और ये कंसेक्यूटिव 3 उंगलियां लगाइए यू विल फील समथिंग हियर सो इफ आई पुट हियर सो इफ आई चेक इट हियर एंड पुट अटेंशन आपको तीनों में पल्स फील होगा हल्का हल्का या किसी में ज्यादा होगा तीनों फिंगर्स में कुछ ना कुछ फील होगा हाँ अब ठीक है आंख बंद करके सोचिए फिर आपको फील होगा कि हाँ यहाँ भी कुछ हो रहा है यहाँ भी कुछ हो रहा है कुछ थोड़ा सा हुआ सो फिंगर्स वाता पित्ता कफा उसमें शब्दोशाज होते हैं उसमें धातुज होती हैं उसमें सत्वर स्तंभ होता है सो बेसिकली एक आयुर्वेद डॉक्टर जब आपकी पल्स चेक करता है तो आपकी बॉडी में इम्बैलेंसेस ढूंढता है सो हमारी बॉडी में जो कुछ भी चल रहा है जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म जो भी सिस्टम चल रहे हैं उसका मैनिफेस्टेशन होता है 5 बेसिक एलिमेंट्स या वात पित्त कफ के रूप में सो दैट वी चेक हियर एंड दिस इज अ साइंस दिस इज एब्सोल्युटली अ साइंस बेसिकली जो आप इस फिंगर में फील कर रहे हैं इसमें कर रहे हैं इसमें डिपेंडिंग ऑन द स्पाइक्स 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 और द एग्जैक्टली इंटेंसिटी ऑफ दैट दैट स्पाइक सो दैट वो हमें ये पता है आई मीन एज अ डॉक्टर्स वी नो कि बैलेंस क्या है और इम्बैलेंस क्या हो सकता है
Interesting. आपका बॉडी टाइप क्या है, सब कुछ पता चल जाता है, Oh, बिकॉज इट इज अ beautiful. साइंस, इट It इज is. नॉट एट ऑल कुछ सिद्धि, इट्स एब्सोल्युटली अ साइंस. But this is a science that has come from our Vedas. Absolutely, Technically. this is the core of Ayurveda. A patient would come to me and I'm sorry guys, एक वैद्य या एक आयुर्वेद डॉक्टर का नाड़ी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन माय प्रैक्टिस आई हार्डली आस्क एनी क्वेश्चन कि क्या हुआ. नॉर्मली क्या होता है, डॉक्टर का जाओ, डॉक्टर बोलता, हाँ क्या हुआ, पेट दर्द है, जाओ. जी. अरे देखो तो सही उसको यार, क्या हुआ उसे. सो सब कुछ देखा जाता है. आयुर्वेद में एक शब्द बोला जाता है, दर्शन स्पर्शन प्रश्नम परीक्षे चरोग्रम. दर्शन मीन्स देखकर, आईसीयू मैंने याद आपका प्रकृति देख लिया कौन सा है. स्पर्शन टच करना, और फिर भी जरूरत है देन प्रश्नम यानी क्वेश्चन करना, क्वेश्चनिंग. Interesting. इट्स वेरी गुड. ऐसे अष्टवेद भी है, नाड़ी Interesting. मल मत मूत्र शब्द स्पर्श जगह कर दी, Interesting. ऐसे 16 टाइप्स भी. आयुर्वेद बहुत इंटरेस्टिंग है. Interesting, doctor. This is so interesting, and I think what's very, I mean, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि how learned is our traditions, how learned is our Indian just knowledge systems. इतना अच्छा है दिव्या जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूं. 5000 पहले चरक संहिता लिखी गई थी. तो चरक संहिता में जो निदान स्थान, यानी कि जो निदान का मतलब होता है डायग्नोसिस. फॉर एग्जांपल आज डायग्नोसिस हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं. जी. यार तुम्हें टीबी लग रही है, हाँ तुम जाओ टीबी गोल्ड करा के आओ और मेंटॉक्स टेस्ट करा के आओ. दिस इज व्हाट वी नॉर्मली से. चरक संहिता में 5000 साल पहले संस्कृत में लिखा होता, अंश पार्श्वितापश्य संताप कल्पादयो. अंश का मतलब होता है शोल्डर, अंश पार्श्व साइड, अंश पार्श्वितापश्य यानी यहाँ पे गर्मी होगी, संताप यानी हाथ और पैरों से गर्मी निकलेगी और बुखार होगा. अरे 5000 साल पहले भैया लिख दिया गया बुक के अंदर, बिलीव मी और नॉट. And this is all by just by looking. You can. या यानी आप सोचिए 5000 साल पहले वो सिम्टम दिख देगा जो आज हम मॉडर्न साइंस में, जिस कोविड की हम आज बात कर रहे हैं, इसका साइंटिफिक कोरिलेशन नॉट विद द नेम ऑफ कोविड, बट 5000 साल पहले बता दिया गया था कि भाई ऐसी ऐसी भी एक बीमारी होती है जिसमें ये ट्रीटमेंट करने चाहिए. Fantastic. और एग्जैक्ट सेम टाइम्स में मिलते हैं. आप विश्वास करिए, बिलीव मी नॉट, जो मॉडर्न साइंस में हमने एज अ डॉक्टर वी हैव टू study both sciences. So BMS पढ़ना is a very difficult job because you're studying 5000 साल पुराना science also and then studying modern science also. Because modern नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं पता चलेगा ना, फिजियोलॉजी उस समय लगती. So it's very interesting. But when we correlate things, we match exactly same. कैंसर के सिम्टम्स अर्बुद सेम. यानी ऐसा लगता है कि यार ये इसमें कैसे लगा है. How do they know कि How ये- did exactly आपने कैंसर का नाम लिया, and I'd like Yeah. to talk about it. You know, Yeah. I mean, there's lots of times where you have, you've had people who are diagnosed with cancer, and modern science में उनको उसकी solution नहीं मिलता है. There's really no medicine and nothing to cure it. And a lot of people then turn to Ayurveda and they've got the solution or they've got cured. How is it not like what is your experience with First of all, this? this is a pain. This is a pain when you said a lot of people Dan is in capitals. Dan turn to Ayurveda. I get a lot of patients every day 5-7. Sir, doctors ने जवाब दे दिया, अब आप बताओ क्या कर सकते हो. जी. यार आयुर्वेद इज आवर साइंस गाइस. आयुर्वेद हमारा है ना, किसी और का थोड़ी है. तो पहले ही आप आयुर्वेद वाले डॉक्टर के पास जाओगे तो आपकी हेल्प कर पाएगा. आप जैसे अच्छे स्पीकर और अच्छे मंच के ऊपर अच्छे पॉडकास्ट के अंदर ये डिस्कशंस होते हैं, तो लोगों को मैसेज आता है कि लेट्स टेक और लेट्स मेक आयुर्वेदा द फर्स्ट. इफ इट इज द फर्स्ट अप्रोच, बिलीव मी यू डोंट हैव टू टेक केमिकल स्टेरॉइड्स. मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, बट बिलीव मी 80% ऑफ द पेशेंट्स, भैया एलोपैथी में ही हो गया. एलोपैथी इज गुड, मना ही नहीं है, बट जहाँ जरूरत है वहाँ पे लो. ठीक है, तो अब हम कैंसर की बात कर रहे हैं. सो यूजुअली व्हाट पेशेंट्स आई गेट इज 4th और 5th स्टेज कैंसर्स. कि सर ये है, मेटास्टेसिस हो चुका है, कीमोज हो चुके हैं, रेडियोज हो चुका है, उन्हें एम्पुटेशन भी हो गया कोई ऑर्गन कट के, अब आप क्या कर सकते हो. लाइक मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी कर सकता हूँ. दिव्या जी, आई ऑलवेज बिलीव इन साइंस. आई एम अ साइंस का बंदा. आई डोंट बिलीव इन जादू. आई एम वेरी साइंटिफिक मैन. सो देर आर स्टेजेस. हर डिजीज की स्टेजेस होती है. अगर पेशेंट फर्स्ट सेकंड स्टेज तक आता है, डेफिनेटली आयुर्वेदिक मेडिसिन वर्क वंडर्स. इफ यू गो टू पबमेड एंड गुड मेडिकल जर्नल्स वेबसाइट ऑल्सो, यू सी अ लॉट ऑफ रियल रिसर्च पेपर्स जहाँ पे कुरकुमीन, जैसे हम हल्दी बोलते हैं, जी. हाँ, हल्दी का यूज हुआ है. हम सब जानते हैं हल्दी काम करती है, बट एंटी कैंसरस काम करती है, ये भी चलो हम जानते हैं, बट हम साइंटिफिक नहीं रखते. बट देर आर सो मेनी साइंटिफिक रिसर्चेस विच आर डन. अश्वगंधा वर्क्स एंटी कैंसरस वंडरफुल. कांचना जैसे विच वर्क्स वंडरफुल ऑन दिस. Amla, this Indian gooseberry that works wonders. So there are so many researches which are done. So yes, if it is the initial stage, just diagnose.
इवन तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स, वो डायग्नोज भी नहीं करने देगा, वो बता देगा जी ये चल रहा है, आप ये लो, ठीक हो जाएगा। सो उस लेवल पे अगर हम सोचेंगे ना, बिलीव मी, जो कैंसर की वजह से एक ट्रॉमा, नॉट टू द पेशेंट बट टू द फैमिली, family that it's gets so traumatic. I have seen a lot of thousands of patients, which I also feel connected. Ki it's such a pain. It's such a pain. so here again I mean this is a very interesting debate or question or thought कि because आपका modern medicine है, modern medicine is something that we are using all the time, we're used to, it's available off the counter, it's also very quick, right? आपको पता है बुखार है, आपने ले लिया, 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाएगा. So there is a natural bias for all of us to work towards modern medicine. On the other hand, there is of course Ayurveda, which is age old, which is our science, which will solve the problem from the root. Lekin it is also very time consuming. So you get stuck in this quandary कि मैं मतलब should I go this modern medicine route, मैं कहाँ जाऊँ, मैं परसों तक ठीक हो जाऊंगी, या मैं आयुर्वेदा जाऊँ, मेरे को काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे, it will take longer. So yes, maybe the better answer is Ayurveda, but when you're choosing, and can you do it together कि क्या आप, can you get the benefits of modern medicine while at the same time getting the Beautiful benefits question. of Very beautiful Ayurveda? question. Very beautiful question. Yes. So all the three questions I will answer one by one. There are certain diseases. Let me just take a very simple example. एक patient है जिसको autoimmune disorder है, myasthenia gravis, SLE. There are so many autoimmune disorders. अब वो मेडिसिन ले रहा है, उसमें स्टेरॉइड्स ले रहा है या इम्यूनोसप्रेस ले रहा है। एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर कभी आपको नहीं बोलेगा जाओ दवाई बंद कर दो मैं ठीक कर दूंगा। ही वुड नेवर से दिस। व्हाई? बिकॉज ही नोज द बायोकेमिस्ट्री बिहाइंड। सो व्हाट ही वुड से इज दिस कि ओके हम इसको धीरे धीरे टेपर ऑफ करेंगे एंड देन वी विल स्विच ऑन टू अवर मेडिसिन स्लोली लाइक दिस। सो यस, आयुर्वेदा एंड एलोपैथिक मेडिसिन कैन गो हैंड इन हैंड provided what is the medication, because sometimes contraindication भी होते हैं, side effects भी होते हैं, but this is again the call of the doctor, but they can go hand in hand with some gap कि 1 घंटा पहले ले लेना, things like this, because after all देखिए एवरी साइंस का जो पर्पस है वो है पेशेंट को ठीक करना, सिंपल। सो देयर इज नो क्रिटिसिज्म। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट यू आस्क कि अगर मुझे आज जरूरत है तो आयुर्वेदा इज कैपिटल्स में वेरी स्लो। इट इज नॉट, इट इज नॉट वेरी स्लो, इट इज नॉट स्लो, इट इज नॉट स्लो। बुखार हुआ, डोलो 650 लिया, पीसीएम लिया, शाम तक ठीक हो गए, सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए दोबारा बुखार हो गया, फिर सुबह ऑफिस चले गए, फिर शाम को बुखार हो गया। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, जहाँ जरूरत तो लेना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आप एक एवरेज डॉक्टर से मिलोगे तो वो बताएगा यार एक, चलो फिर संस्कृत पे आते हैं थोड़ा सा सर्वाणाम रोगाणाम लंघनम परमौषधम, यानी सभी रोगों का सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है लंघन। लंघन मीन्स फास्टिंग। Okay. नॉर्मली चलो एक कॉमन सेंस की बात करते हैं, नॉर्मली जब बुखार होता है तो आप ऐसा नहीं होता यार मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है, डोंट गिव मी एनीथिंग, बॉडी बोलती है मत खाओ, पापा मम्मी और हस्बैंड बोलते हैं अरे खाओ तो सही, तुम एंटीबायोटिक खा रही हो। एक बाहर मतलब एक वो है स्टार्व फीवर, या एग्जैक्टली, फीड अ कोल्ड, एग्जैक्टली राइट, जो एग्जैक्टली बोलते हैं तो एग्जैक्टली इट इज द सेम। या बट वो घर वाले खिलाते रहते हैं, अरे खाओ एंटीबायोटिक खाना है, खाओ खाओ खाओ। तो वो 3 दिन पहले हमारे जमाने में 3 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स होता था, अभी रिसेंट में 7 days का ट्रेंड चल रहा है, 7 दिन एंटीबायोटिक खा रहे हो, मना ही नहीं है, जहाँ जरूरत हो खाइए। बट अगेन अगर आप एक डॉक्टर से मिलेंगे आपको बताएगा यार आपका फीवर का ये है, फीवर भी एक छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको। मॉडर्न मेडिसिन में फीवर की एक दवा है पैरासीटामोल, यही हम सब जानते हैं। आयुर्वेद में 96 तरह की दवाई है। wow. अभी आयुर्वेद डॉक्टर हैज टू डिसाइड यार दिव्या को कौन सी दवाई देनी है, मीत को कौन सी देनी है, मन को कौन सी देनी है। ये सब आयुर्वेद डॉक्टर डिसाइड करता है आपकी पल्स के अकॉर्डिंग, आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग, आपकी विकृति के अकॉर्डिंग। सो आई एम सॉरी बट अगेन प्लीज लेट मी क्लियर दिस, आयुर्वेदा इज नॉट अ स्लो acting medicine. It works fast, not in 10 minutes but in hour or 2 you will get the results. I get a lot of emergencies in my hospital, right. a lot of emergencies where people sometimes the blood pressure goes 250, तो मैं वहां जा लाके सॉल्वेट थोड़ी देता हूँ, मैं उसको मुक्ता पिष्टी खिलाता हूँ, 15 मिनट में नॉर्मल हो जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। So even for chronic, even for BP, there there are are medicines, there options. are medicines, there are medicine where you can use it like this. Side effects of Ayurvedic medicine, right? तो ये होता है कि अच्छा ये ले रहे हो, बीपी है आपने, you might be having your modern medicine, but ये आयुर्वेदा का आप ये ले ले। So आयुर्वेदिक मेडिसिन की साइड इफेक्ट्स होते हैं, कितने होते हैं, हाउ, like is it the same as regular medicine? नॉट एग्जैक्टली द सेम बिकॉज यहाँ कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा। तो ये अच्छी चीज है, कोई केमिकल यूज नहीं है तो साइड इफेक्ट वो नहीं होगा। बट आयुर्वेदिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट तब होगा जब वो सही से प्रिपेयर्ड नहीं है, यू नो
As I said, 18,000 pharmacies in Delhi. इतने तो डॉक्टर भी नहीं है जितनी pharmacies है. तो ये कहाँ खुली हैं, लोग क्या कर रहे हैं? Malpractices friends everywhere है. तो एक तो वो कि वो रॉन्ग मेडिसिन बनी हुई है. दूसरा, कॉम्बिनेशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 3 टाइम की एंटीबायोटिक एक साथ ले लोगे तो साइड इफेक्ट होगा. उसी तरीके से एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ. गोल्डन लाते सुना है? गोल्डन लाते, हल्दी वाला दूध यार. हाँ जी. तो बड़ा ट्रेंड में है. मैं यूरोप ट्रेवल करता हूँ. मैं वहाँ पे मकियातो या फिर वो क्या कहते हैं, कभी कभी हॉट चॉकलेट ऑर्डर करता हूँ, लोग गोल्डन लाते पी रहे होते हैं 15 यूरो का. लाइक वाह यार, दूध में हल्दी तो मिला के दे रहे हो, तो बहुत दे क्या रहे हो? Love it. हाँ? जब मम्मी हल्दी अब वाला नहीं दूध पिया. पीती है, I get so हम लोग इतना अभी मैं एकदम upset होते हैं. एम्स्टर्डम जाके एयरपोर्ट पे बैठ के गोल्डन लाते पी रही हूँ. जी जी. सो अब गोल्डन लाते तक ठीक है, लेकिन लोगों को पता चल गया कि यार हल्दी तो बड़ी अच्छी है आयुर्वेद में ना. आयुर्वेदा इज सो सेलिंग इन अब्रॉड, आई कैन नॉट टेल यू, इट्स लाइक क्रेजी क्रेजी. तो गोल्डन लाते वहां तो उनको पता है प्रमोशन, बट जो घर पे है वो बोलते हैं हल्दी बहुत अच्छी है, तो उसने 2 चम्मच मिला के ले लिया, 2 टेबल स्पून ऑफ हल्दी इन दूध. और फिर वो 15 दिन बाद मेरी कंसल्टेशन में मेरे को एम्स्टर्डम में बोलता है, आई हैव अ लॉट ऑफ स्टमक पेन, आई हैव एक्सट्रीम डायरिया ऑल्सो, एंड आई एम डाइंग बिकॉज ऑफ स्टमक इश्यूज. क्या किया? नहीं मैं तो वीगन हूँ. अच्छा तो ठीक है, और क्या किया? वो कुछ नहीं, मैंने आलमंड मिल्क, वो दूध कम पीते हैं वहाँ पे लोग, तो आलमंड मिल्क ज़्यादा लेते हैं, आलमंड या फिर सोया. आलमंड मिल्क में 2 चम्मच हल्दी क्यों डाली यार? 2 चम्मच डालने, 1 टीस्पून डालना था. मात्रा. नाउ दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं इफ द डोजेज इज नॉट अप्रोप्रिएट. आपने एक साथ 4 टैबलेट खा ली, कोई कषाय या कोई लिक्विड पीना था आपने पूरा पी लिया, मैं तो आज ही ठीक हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होता. ये आपने इंस्टाग्राम पे देख लिया, इसका इतना पीने से ऐसा होता है. अरे भाई ऐसे नहीं होता. कोविड में सबने काढ़े पिए, हाँ, जी. भर भर के काढ़े पिए कोविड से डर के. बट नाउ कमिंग बैक, ABC, वात पित्त कफ. पित्त प्रकृति वाला जिसकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा फायर एलिमेंट था, हॉट था. यू मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ पीपल. आप पार्टी में कभी फ्रेंड्स के कभी जाओगे, देखोगे कुछ लोग एकदम रेड हो रहे होते हैं जरा सा, वो गर्मी टॉलरेट ही नहीं होती उनको. वो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं. दे आर वेरी पर्टिकुलर, वेरी एक्यूरेट, वेरी डिसिप्लिन, वेरी फोकस्ड ऑल्सो, स्ट्रॉन्ग फायर, वो कुछ भी डाइजेस्ट करते हैं. अब जो पित्त प्रकृति वाला पर्सन था उसको तुमने काढ़ा पिलाया, काले मिर्च का, अदरक का, और उसका उसका बर्न हो गया अंदर से. वो 10 दिन बाद पहुंचा ईसोफेजियल वेरिसेस लेकर डॉक्टर के पास में. उसने कहा एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी. आपने एंडोस्कोपी की और देखा, अरे तुम्हारे तो अंदर छाले हो रखे हैं. आई हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ केसेस लाइक दिस. आयुर्वेदिक दवाई का साइड इफेक्ट. अरे आयुर्वेदिक दवाई का साइड इफेक्ट नहीं है, वो आपने उसको रॉन्ग तरीके से लिया विदाउट नोइंग योर बॉडी, इसलिए हुआ. सो आयुर्वेदिक मेडिसिन के तभी साइड इफेक्ट होंगे जब वो या तो सही से प्रिपेयर नहीं हुई है, यानी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, या फिर आपने रॉन्ग डोजेज में ले लिया. ये बेसिक रीजन है, और इसके हर किसी को हो सकते हैं. तो आप Basically, don't self-medicate. better Go not, to a better doctor. not. Try and understand. There's See, a lot of we are so science behind fortunate, it. we are Indians are so fortunate. जब मैं यूरोप ट्रैवल करता हूँ, सो वो 6 महीने मेरा वेट करते हैं कि आप डॉक्टर सौरभ आएंगे. यहाँ तो मैं मेरी जी बात नहीं कर जी रहा, जी जी. यहाँ तो आपको Absolutely. इजीली डॉक्टर्स अवेलेबल हैं. आप जी. जाओ मिलो यार, उनको पूछो कि भाई मेरा टाइप क्या है, बॉडी टाइप क्या है, मुझे क्या लेना चाहिए. आपकी हेल्प करेंगे वो. आई एम सॉरी बट देखिए, क्वैक्स हर जगह हैं, बट डॉक्टर का काम आपके लिए हेल्थ प्रमोट करना है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, ना कि मेडिसिन बेचना. ही इज नॉट अ सेल्समैन, ही इज देयर टू हेल्प यू एज अ ब्रदर, एज अ गार्जियन. As a guardian, and So you it's should very treat it like important. that. Anything that we, I understand we should, all of us need to understand our body type. We need to, this thing. Any certain home remedies, yeah, certain herbs, etc., which you feel ki we can incorporate in our daily life living, whether it's to deal with stress, whether it's for a healthier lifestyle, जो as Indians जो हमारे पास already available है, that we see around us, जो हम incorporate कर सकते So some simple spices, हाँ, दालचीनी. हैं. Okay. आप कुछ भी कुक करते हैं, आप दालचीनी जरूर यूज करिए. वात पित्त कफ तीनों दोषास के लिए अच्छा है. इट्स अ ट्रिक. हाँ, तो तीनों दोषास को बैलेंस करता है दालचीनी. आप तीनों दोषास के लिए उसको यूज कर सकते हैं. आप जीरा, क्यूमिन सीड्स. सो व्हेन यू कुकिंग समथिंग, थोड़ा फैशन भी चला था, वो जीरा पानी पीने से वेट लॉस हो जी जाता है. जी. किसी का होता है वात पित्त कफ, ABC. ABC. Okay. we need to go No, back. it's see, Right. Yeah. No, I think it's बट अच्छी चीज, yeah. अच्छी चीज दिव्या जी है कि साइड इफेक्ट नहीं होता. तो जीरे का पानी पीने से किसी को, मैंने अभी तक नहीं सुना कि डायरिया हो गया. जीरे का पानी किसी को पीने से लाइक कॉन्स्टिपेशन हो गया, ऐसा नहीं हुआ. सो वो ABC तीनों में काम करेगा. सही. सो जीरा आप जब आप कुक करते हैं, जैसे आप राइस भी बना रहे हैं, आयुर्वेद कहता है कि जो डिनर का टाइम है दैट शुड बी योर लाइटेस्ट मील, हल्का खाना है. दिल्ली में लोग, आई एम सॉरी, दिल्ली में सभी जगह सारे इनके Dinners, थके आ रहे घर पे जी रात को आते जी. हैं, दाल सैलड, मैं हेल्दी खा रहा हूँ, सैलड एंड 4 रोटी, एट टाइम्स पराठे ऑल्सो, कुछ मीठा,
और फिर कुछ जगह कुछ बच गई तो उसमें कुछ और भी, सो लाइक इट्स अ बिग बिग यू नो Right. इट्स रियली बिग, सो दैट इज अगेंस्ट द लॉस। वी ऑल अंडरस्टैंड कि हमारी डाइजेशन कैपेसिटी जो होती है सन के अकॉर्डिंग होती है, कि आप जो खा रहे हो आपका सन जैसे ही डाउन हुआ आपका अग्नि कम हुआ, बट हम ज्यादा खा लेते हैं। तो ऐसे में क्या करो, और पहली बार रात शाम को राइस मत खाइए प्लीज। खिचड़ी बनाते हैं, सॉरी बहुत सारा है बट थोड़ा सा बताता हूँ, खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें 3:1 का प्रोपोर्शन रखिए। हमारे घरों में 1:1 का प्रोपोर्शन होता है दाल और चावल का। यूज द मूंग दाल एंड द राइस, ओके, व्हेन यू मेक अ खिचड़ी, डोंट कीप इक्वल प्रोपोर्शंस, मेक 3 पार्ट ऑफ द दाल एंड 1 पार्ट ऑफ इट द राइस। Right. सो अगर आप शाम को ले भी रहे हैं तो उसको आप जीरा राइस बना लीजिए, लेमन राइस बना लीजिए, या जैसा मैंने बोला अदरक ग्रेट करके डाल लीजिए तो वो हल्का हो जाएगा। So dalchini, जीरा, और अदरक, अदरक. ये 3 सब जगह काम करेंगे, सब जगह। बट अगेन गोल्डन लाते याद आया, 2 चम्मच नहीं, जस्ट लिटिल। So what is your take? Like, like everything, I love asking this question that, प्लीज। the West loves to take the Indian remedies, repackage it, and, give it give it back to us. What are some of the Ayurvedic remedies जिसने West ने repackage करके they are getting benefits of Don't them? ask me, this is very painful to answer because most of our herbs, I will not name, but more because that is not good maybe, but most of our magical herbs are being already patented with the West. उन्होंने पेटेंट करा लिया है। Okay. हमारा गोमूत्र गया, हमारा नीम गया, नीम हमारे यहाँ उगता है, पेटेंट उन्होंने करा है। वहाँ पैक करके उसको प्यारा सा एज अ डायरेक्टर इंडिकुम पिंडिकुम बना के, नाम बना के लो जी। यार हमारी चीज़ें बाहर जा रही हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि हम उसको वैल्यू नहीं करें। हम वैल्यू करें जब वो एस से रीपैक होके आ रही है। जी. सो प्लीज़ आप अगर उसको अच्छे से यूज़ करेंगे, अपनी लाइफ में करोगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, हम भी जानते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, बट जो हमारी अर्ब्स हैं जो कि रियली हमें मेडिसिन से, इवन आयुर्वेदिक मेडिसिन से, चाहे मॉडर्न हो चाहे होम्योपैथी चाहे आयुर्वेदिक, मेडिसिन से दूर रख सकते हैं। एटलीस्ट हम उनको यूज़ करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि हमारा नीम, नीम एशिया में होता है, आपके पास नहीं होता केवल, और लोग भी कर सकते हैं उसको। हमारी हल्दी, हाँ ऐसा नहीं है। कुरकुमीन तो गोल्डन लाते चल ही रहा है। सिनेमन, ओ माय गॉड, सिनेमन इतना यूज होता है बाहर। नटमेग पाउडर, जायफल, हम शायद भूल चुके हैं जायफल क्या होता है। जी. No, I अरे mean, it's in हमारी जो घर का स्पाइस बॉक्स होता है, उसमें जो होता है, दादी माँ का था, बस जो वो दैट्स मम्मी ऑल। का है, जो हम हाउ मेनी हर ऑफ जगह अस कैरी आर करते हैं. यूजिंग जायफल इन द प्रिपरेशन ऑफ कुकिंग? हार्डली, हार्डली। जायफल gives you so many side benefits: immunity, digestion, face, hairs, pains. So again, a question. This is again East West. Spices are something that is very inherent to Indian food, right? Indian खाने में मतलब one of the biggest, if I talk to any of my foreign friends, सबको ये होता है कि Indian spices. So is the idea of spices something that is native to India, कि ये हमारा एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए बेटर है, या इज इट समथिंग दैट इज एप्लीकेबल टू द वर्ल्ड? बिकॉज ये लाइक जो स्पाइसेस होते हैं वो इनहेरेंटली हम इंडिया में होते हैं, हमने इंडियन फूड में यूज किया है. हम लोग अच्छा खाना, हम लोग टेस्ट जानते जी. हैं। वी आर नॉट लाइक वेस्ट की सुबह उठ के ब्रेड एंड बटर खा लो, जी. दिन में So एक we've got this चीज खा लो। inherent, वी हैव दिस, वी हैव दिस, we have this but inherent. but okay, they, let's say this is native to India, let's say it like this, at least we feel a little proud, huh? But basically if I talk about the Ayurvedic principles, if I talk about the spices, so वो पूरे वर्ल्ड के लिए ही है, बिकॉज हर जगह का एक टेम्परेचर अलग है, उसका हर कॉन्टिनेंट का अलग अलग सब कुछ है, तो उसकी तरह से वहाँ पे स्पाइसेस होने चाहिए। बिल्कुल अलग अलग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बहुत सारे स्पाइसेस जो वहाँ होते हैं वो यहाँ नहीं होते, बिकॉज वहाँ की लेट्स से वहाँ के एनवायरनमेंट में वो अच्छे ग्रो करते हैं। एंड देखिए नेचर भी कितना इंटेलिजेंट है, नेचर इज सो इंटेलिजेंट, वो आपको वही चीज़ देता है जो आपके लिए ज़रूरी है। फिर हम अपना दिमाग लगाते हैं, अरे ये तो वहाँ से आ रहा है, अच्छा पैक हो गया, ऐसा इतना बड़ा सा डिब्बा मल्टीविटामिन का, इसको इम्पोर्ट। But I completely agree with that at some point of time it's more and more important for us to go local. मोदी जी का भी एक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, या आप एक्चुअली अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपनी लोकेलिटी, अपनी लोकेशन को अंडरस्टैंड करें, समझें कि हमारा लोकली क्या प्रोड्यूस्ड है, और जितना हम लोकली प्रोड्यूस करके लोकली कंज्यूम करेंगे, इट्स नॉट जस्ट गुड फॉर द इकोनॉमी एंड द कम्युनिटी, बट इट्स एक्चुअली गुड फॉर योर ओन बॉडी, लाइफ, लिविंग, वर्सेस आस ट्राइंग टू एप द वेस्ट की वहाँ पे जो फैट डाइट है उसको हम यहाँ पे चालू कर कीटो डाइट, देते मैं हैं, केवल कीटो डाइट पे हूँ। keto diet पे करते हैं and replicate करते हैं. I'd love to take this to another question is a lot of celebrities these days have now discovered, vegetarianism. Virat Kohli had read this beautiful book by autobiography of a yogi, and as a sports star he became completely vegan.
So what are your thoughts on this कि ये वेजिटेरियनिज्म में या इस डाइट में क्या सीक्रेट सॉस है? How important is it? Or is it okay for, and there are other people who've actually said कि हम paleo paleo diet पे जा रहे हैं or we are going to be completely, non-vegetarian. So what Yeah. is your take on this? See, again, ABC, very important because there is no thumb rule, okay? There is no thumb rule. In fact, शायद आपको थोड़ा strange भी लगे, आयुर्वेद में भी there are certain diseases जहाँ पे कहा गया है कि आपको मीट या नॉनवेज लेना चाहिए. Okay. There are certain, very few of them, but there are. Okay, now talking about the vegetarian being, I'm Brahmin, obviously I would promote vegetarian. I'm a No, hardcore I vegetarian. mean I'm Jain. मैंने Oh हमेशा yeah, we जैन are sitting in the देखा हुआ same है, boat. तो मुझे बड़ा मजा आता है क्वेश्चन पूछने के लिए and I'm like, But again, yeah, coming back to the same, if you have a good digestion capacity, one thing, plus you are eating mindfully, this is the veggie very important. No matter तुम paleo diet ले रहे हो, keto ले रहे हो या फिर तुम normal diet ले रहे हो, if you are not eating mindfully, it is absolutely waste. So even vegetarians, say Virat Kohli, obviously there are so many good examples. We are also examples. Okay, they are healthy enough, provided they are disciplined. वेरी इंपॉर्टेंट इज द डिसिप्लिन. अगर प्रोटीन इंटेक है तो वो भी प्रोटीन लिमिटेशंस में होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट यू जस्ट हैविंग प्रोटीन्स ओनली. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल, लेट्स से necessity of a body. Virat Kohli has a different necessity, you have a different, I have a different, and all we also are vegetarians. So this is all about discipline. How much protein he needs because he is into sports, right? right. Okay, how much protein you need, how much protein I need. It's not like this only the meat can give you protein. No, if you have a good absorption, good digestion capacity, yes, you can obviously absorb protein from the vegetarian food also. So I definitely recommend being vegetarian. School में भी हमने पढ़ा है वो एक cycle थी, I forgot the name, कि the nutrition goes down as per Right. the next Right, level. this thing. So I would definitely appreciate being vegetarian. Yes, it's a good idea, and we have got so many resources of proteins in the veg diet also. So does Ayurveda particularly recommend being vegetarian? Yeah, they are okay. They are saying yeah, you can be non-vegetarian in case you're तो जब आयुर्वेद वात पित्त कफ की बात करता है, द सेम वे आयुर्वेद टॉक्स अबाउट सत्व रज तम. ये सुना है? सात्विक इंसान है. यू मस्ट हैव हर्ड दिस. ही इज अ वेरी सात्विक गाय. हाँ, ये तो बड़ा तामसिक है. सो सत्व इज द प्योरेस्ट फॉर्म, द कॉन्शियसनेस, सॉफ्ट, लाइक साधु सेंट्स. राजसिक इट मीन ऑन गोइंग, लाइक वी पीपल जो काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, फायर वाले. एंड तामसिक इज वेरी lazy, lethargy, lazy moons, negative, depressed. So these three things. So आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको नॉनवेज नहीं लेना चाहिए. द रीजन इज दिस, नॉनवेज ब्रिंग्स रजस एंड तमस. रजस जो नॉनवेज है हीट, इट इंक्रीज फायर इन द बॉडी, सो देन इंक्रीज द फायर. एंड सर्टेन नॉनवेज लाइक पोर्क और अदर थिंग दे इंक्रीजेस तमस. सो आयुर्वेद ये कहता है आपको सात्विक डाइट लेनी चाहिए जिसमें शाक. देयर आर सर्टेन चैप्टर्स, दिव्या जी, चरक संहिता में चैप्टर्स है हमारे पास फूड को लेकर. उन चैप्टर्स में साफ साफ लिखा है आप वेजिटेरियन रहिए. अपने अष्टविध प्राणायाम कि 8 तरह से खाना कैसे खाना चाहिए. उसके अंदर प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, उपयोग संस्था, ये भी लिखा है कि किसके साथ बैठ के खाना चाहिए. आप सोचिए. अच्छा. हाँ, तभी उसका एब्जॉर्प्शन होगा, वरना नहीं होगा. Oh, I'd love this. Give me 2 seconds on this. So I think this is also very interesting. Yeah. Is आपके साथ कौन है? You said this mindfulness. Yeah. And हमारे को बोलते हैं कि आप खाना खा रहे हैं. Again, this is a very common thing. खाना खा रहे हैं, वो डेस्क पे खाना खा रहे हैं, काम पे, या फिर वो टीवी के सामने बैठ के खा रहे हैं. One of our basic principles is खाना खा रहे हैं तो sit with your family, sit with Yep. your parents, Sit with your loved ones. Sit Let me use the with- word. Maybe he or she can be your colleague, your friend, your boss, even loved ones. Like, it's not like money, but happiness. वो जब तक खाने में bliss factor नहीं आएगा ना, ये कोई mythological नहीं है, इसमें कोई story नहीं है. This is totally scientific. जी. अब there are so many PubMed के ऊपर हम researches, there are so many researches also done. जहाँ पे अगर आप mindfully खा रहे हो, consciousness से खा रहे हो, plus like minded या like at least when you are connected such kind of people के साथ खा रहे हो, तो उसकी Beautiful. nutritional efficiency बहुत ज़्यादा होती है. Beautiful. अच्छे से अच्छा खाना अगर आप सैड होके खा रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू स्टे इन योर बॉडी, रादर इट्स गोना क्रिएट द बिग कैपिटल वर्ड्स. मैंने कहा था आमा, आमा बना, टॉक्सिन बना, डिजीजेस हुई. जी. यार अच्छा खाता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मुझे नींद नहीं आती. अच्छा खाता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को पेट खराब रहता है. आई बिलीव दिल्ली में, एनसीआर में 70% लोग सुबह को पेंटोसिड के साथ दिन शुरू करते हैं. जी. And I think that's such a beautiful thing is why not sit and eat with your loved ones. Loved eat ones is with very your important. Family. Yep. Be mindful of it. एंड So एंजॉय आप इट. enjoy आप it. फोन और कंप्यूटर्स के साथ तो पूरे दिन रहते हो. जी. मैं, मेरे पेशेंट्स को भी थोड़ा ब्लंट है, बट ये बोलूँ, यार किसके लिए कमा रहे हो? खाने के लिए कमा रहे हो ना.
सोओगे उसी बेड पे, उस खाने को तो एंजॉय करो, टर्न ऑफ द फोन फॉर दैट 15-20 मिनट्स, टर्न ऑफ द, टॉक गुड थिंग्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिसका करो, एंड एंजॉय द फूड। खाने को आंख बंद करके चबा के अच्छे से खाओ, सो दैट ओरल, अभी एक पॉडकास्ट हमने किया था ओरल हाइजीन के ऊपर, बहुत अमेजिंग था वो, उसमें टॉकिंग अबाउट द फूड एंड सो अगर डाइजेशन माउथ से शुरू होने वाला है तो उसको गल्प क्यों करना है, अच्छे से चबा के खाओ, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो बॉडी में धातुएं अच्छी बनेंगी, आप में एजिंग प्रोसेस नहीं आएगी, एंड यू बी बिकम स्ट्रॉन्ग, सो Stronger. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। And this. Dr. Saab, I'd love to get into, certain herbs, that people are consuming, having, and I'd love to understand क्या होती हैं and उनके क्या benefits, negatives है. First up is Shilajit. शिला मीन्स पत्थर, पहाड़, पहाड़, जीत यानी उसमें से जो रस निकला, सो दैट्स टिपिकली शिलाजीत। पहाड़ के ऊपर कोई एक पौधा नहीं उगता, बहुत सारी, जैसे संजीवनी बूटी लेके हनुमान जी, उन्होंने कहा कौन सी वाली भाई, पेड़ ही उठा ले, सारा पहाड़ उठा ले, जी. सेम थिंग। तो शिलाजीत बेसिकली एक रेजिन है जो कि पहाड़ों में से, पहाड़ के जो भी बड़े पहाड़ होते हैं उसके बीच में से निकलता है, सो दैट इज बेसिकली। अब ये जो रेजिन है ये कई तरह की हर्ब्स और मेटल्स नहीं, मिनरल्स का है, ये इंटरेस्टिंग बात। पत्थर से पत्थर से निकलता हुआ रिसाव है या एक लिक्विड है बेसिकली, जो कि हर्बो मिनरल है, ये हर्बल नहीं है, इसमें जड़ी बूटी नहीं है कोई, ये हर्बो मिनरल एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि जमीन में मिनरल्स हैं, इट्स कमिंग फ्रॉम द पहाड़, हाँ, सो हर्ब्स और मिनरल के एक्सट्रैक्ट निकल रहा है। इसका जो न्यूट्रिशनल इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा है, आई एम यूजिंग द वर्ड न्यूट्रिशनल बिकॉज में सब कुछ है, इसमें वाइटामिन तक है, सब कुछ है इसके अंदर। प्रोपोगेट हुआ शिलाजीत किसी अदर वे में, बट जी. बेसिकली शिलाजीत ऐसा नहीं है। शिलाजीत अगेन एक रसायन है ना, रसायन का काम क्या हुआ, लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम, वे सभी लाभ और उपाय जो कि अगेन रसादी धातुओं की पुष्टि करते हैं। सो माय फ्रेंड्स, अगर आपको ये लगता है शिलाजीत मेन के लिए, एब्सोल्युटली रॉन्ग। शिलाजीत एफ्रोडिजियक है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। शिलाजीत से आप सुपरमैन बन जाओगे, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने वो बताया था मिनरल प्रिपरेशंस होती है, शिलाजीत भी उसी तरीके से काम करता है। शिलाजीत काम करता है आपकी सारी धातु के ऊपर। जिन लेडीज को बहुत ज्यादा, जिन गर्ल्स को बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं, जी. पीसीओडी भी है, शिलाजीत इज गुड फॉर देम। हाँ हाँ. हाँ, सो शिलाजीत जो herb है या जो रेजिन है, जो प्रिपरेशन है, ये बेसिकली सबके लिए अच्छा है। अगेन क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है ये Right. भी। But is it an aphrodisiac as इट herb? वर्क्स ऑन ऑल द धातुज, सो बिकॉज इट इज, शिलाजीत गर्म होता है, ये तो पता है, शिलाजीत इज गर्म, तो ये आपकी बॉडी में जल्दी से एब्जॉर्ब होता है, हाँ, तो एक्टिविटी देता है, जैसे लोग कैफीन नहीं लेते हैं स्टिमुलेंट, उसी तरीके से एक तरह स्टिमुलेशन का भी काम करता है वेरी क्विकली, बिकॉज इट इज वेरी उष्णवीर्य, इट्स कमिंग फ्रॉम द पत्थर, इट्स वेरी उष्णवीर्य, बट यस इट वर्क्स एज एफ्रोडिसियक ऑल्सो, इट वर्क्स एज अ वेरी गुड ब्रेन टॉनिक ऑल्सो, बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जो शिलाजीत का रोग अधिकार, इट मीन्स किस डिजीज पे काम करता है वो पता है क्या है आपको, डायबिटीज। Diabetes. शिलाजीत इज द बेस्ट फॉर डायबिटीज। Fantastic. क्योंकि वो it's increasing your या production of एग्जैक्टली insulin. एग्जैक्टली एग्जैक्टली सिक्रेशंस बढ़ाता है, जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेजेस होते हैं आपकी बॉडी में, फॉर एग्जांपल डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन सिक्रेशन नहीं हो रहा है, फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है पेनक्रियास से, तो जो डक्ट है उसमें कोई ब्लॉकेज हुआ, उसको स्टिमुलेट करें, सो आपकी बॉडी का सिंपल भाषा में मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है शिलाजीत। Beautiful. बट हाँ, यहाँ बोलूंगा शिलाजीत को गर्मियों में नहीं लेना चाहिए, वाई, बिकॉज गर्म है, दिस इज डेफिनेटली गर्म, आयुर्वेद दवाई गर्म होती है सब बोलते हैं ना, उसमें एक पार्ट में शिलाजीत गर्म होता है, शिलाजीत इज रियली गर्म, उसकी मात्रा, नाउ साइड इफेक्ट की बात करें, चम्मच भर के लोगे पता नहीं क्या होगा, हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, वो बहुत थोड़ा सा, फ्रॉम द टेल ऑफ द स्पून, हार्डली 200 और 300 मिलीग्राम्स विद मिल्क, शहद के साथ नहीं लेना, शहद क्यों बताओ, बिकॉज गरम. शहद गरम, सो गरम गरम लिया, गरम. बहुत. वेरिसेस हो गई, पहुंच गया एंडोस्कोपी, एलोपैथिक वाले ने बोला भैया तुम्हारे आयुर्वेद ने तुम्हारा खराब कर दिया, सो आप अच्छे से लीजिए इसको, समझदारी से लीजिए, हाँ ठीक है, कई जगह काम करता है, डाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग करेगा, बट डायबिटीज के पेशेंट के लिए आई ऑलवेज गिव शिलाजीत, इट वर्क्स वंडर्स, Beautiful. वंडर्स। सो एफ्रोडिजियक भी है, नींद भी अच्छी लाता है, स्ट्रेंथनिंग भी देता है। जिनको बॉडी पेन है, अब दिव्या जी क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन आंसर, जिसको बॉडी पेन है उसमें भी काम करता है, बताओ कैसे, मैं Because बताता हूँ, इट्स कमिंग फ्रॉम द शिला, हाँ, उसमें सारे सारे एक्सट्रैक्ट्स हैं, सो क्या पता हड़जोड़ का पेड़ भी ऊपर लगा था, उसका भी एक्सट्रैक्ट आ गया, क्या पता अश्वगंधा लगा था, क्या पता वहां पे शीरीष लगा था, मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता कि उस पहाड़ पे कितने पेड़ लगे थे, उन सब का एक्सट्रैक्ट उसमें आ रहा है। so quick question. आप पहाड़ से आता है तो या does that mean that different areas where Shilajit is coming from,
अगर हिमाचल से आ रहा है या 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 आई मीन आप कश्मीर में थे हम, या तो कश्मीर में शिलाजीत वहाँ पे शिलाजीत इट वाज मैसिवली, तो क्या अलग-अलग रीजन का शिलाजीत अलग होएगा? थोड़ा सा डिफरेंट आता है, लेकिन जैसा कि मैंने एक वन वर्ड यूज किया था, प्योरिफिकेशन। शिलाजीत ऐसा नहीं है कि लो जी जी। स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। शिलाजीत का भी प्योरिफिकेशन होता है, उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अच्छी कंपनीज हमेशा आपको टेस्ट करके देगी, जो वहां पे देते ना, लो जी शिलाजीत सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, Don't बेटर do मत it. लो प्लीज, Yeah, don't बिकॉज यू try डोंट नो it. व्हाट इज Yeah, इनसाइड। yeah. Why? Now it's a very controversial statement which I'm gonna say is this, क्योंकि उस पहाड़ पर अच्छे पेड़ थे, बट क्या पता कुछ खराब भी था। एक्सट्रैक्ट तो सभी का है ना जी। सो दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज प्योरीफाइड। उसको प्योरीफाइड गोमूत्र में किया जाता है, कभी कभी छाछ के साथ, बटर मिल्क के साथ भी जाता है, देन इट कम्स टू द मार्केट। लो जी अब इसको सेल करो, प्योरिफिकेशन जरूरी है। सो शिलाजीत हैज गॉट मल्टीपल साइड बेनिफिट्स। बाय इट फ्रॉम अ गुड कंपनी एंड टेक इट लिटिल। सुपरमैन एक दिन में नहीं बनने वाले हो आप, स्लोली स्लोली। Have it in a bit. या The other one is Brahmi. Oh, nice. I love it. Like I said, ब्रह्मा जी से आयुर्वेदा Yeah. आया है, ब्राह्मी needs to be a, क्या बात है। क्या उसका benefit है and where does it come from? Is it something we can be using? ब्राह्मी हमारे देश में होता है, एटलीस्ट हम कुछ तो कह सकते हैं। ब्राह्मी और कहीं नहीं होता। एशिया सेंट्रल एसिटिक इंडिया में होता है, बाहर नहीं होता। Only India. ओनली इंडिया में होता है, फॉर्चुनेटली। ना ब्राह्मी बहुत ही अच्छी हर्ब है, वो जमीन पे उगता है, ऐसा छोटा सा डबल हार्ट के जैसे वो चिड़ी का पत्ता होता है, उस तरह के पत्ते होते हैं, बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट मेरे हॉस्पिटल में उगा हुआ भी है बहुत सारा। तो अक्सर मैं शाम को जब गाड़ी पार्क करता हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों को, बच्चे तोड़ तोड़ के खा रहे होते हैं। सिट्रस Really? लिटरली इमेजिन, हमारे देश का देखिए, हमारे बच्चे, कभी हमने नहीं बताया, वो बच्चे खुद तोड़ के क्या खा रहे हो भाई? अंकल ब्राह्मी खा रहे हैं। इमेजिन छोटे बच्चे जिनको हम लोग ये सोचते हैं कि शंख पुष्पी, हाँ शंख पुष्पी खाने से आपका ब्रेन बहुत तेज होता है या ये होता है, अरे ब्राह्मी वो खुद प्लग करके पास में टैप लगाए, वो गार्डनर वाला, उसको वॉश करके खा रहे होते हैं। सो ब्राह्मी इज वेरी गुड फॉर द ब्रेन। नाउ नॉर्मली कहा जाता है ब्राह्मी बहुत अच्छा है मेमोरी के लिए या स्टूडेंट्स के लिए। नो, ब्राह्मी बहुत अच्छा है नींद के लिए भी। कामिंग, ब्राह्मी इज अ काम, इट्स कूलिंग अर्ब। अगर आप ब्राह्मी यूज करते हैं तो आपकी नींद पे भी बहुत अच्छा काम करेगा, ब्रेन रिलैक्सेशन देगा, स्लीप अच्छी आएगी। जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया है, उस पर अच्छा काम करेगा। किसी को पैल्पिटेशन होती है, उस पर काम करेगा। ब्राह्मी आपकी ब्लड प्रेशर को भी काम करता है। सो मल्टीपल साइड बेनिफिट्स। तो अभी हमने बात की, शिलाजीत लेना है थोड़ा सा दूध में सुबह ले लो, स्टिमुलेंट है ना, दूसरा कैफीन का बड़ा भाई है विद नो साइड इफेक्ट। और ब्राह्मी लेना है तो रात को ले लो थोड़े से दूध में, कामिंग Calming, रिलैक्सिंग, yes, दोनों तरह right. से काम कर जाएगा। एंड अच्छी चीज ये है कि ब्राह्मी का कोई साइड इफेक्ट नहीं, ABC तीनों लोग ले सकते हैं। Beautiful. What is, I mean, we spoke about this and आपने mention भी किया था, what is Ayurveda's take on caffeine? मतलब क्या सोचते हैं हम कॉफी को, या ये जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, how does that impact and affect the body? नो, वाई, रीजन। ABC पे चलते हैं बस, ABC। A वात, B पित्त, C कफा। जो कफा वाला पर्सन है वो हमेशा टायर्ड रहेगा। आपने बहुत लोग देखेंगे, ऑफिस में भी कहीं मिल जाएंगे, वो हमेशा स्लो ही रहते हैं। वो है ना, काल करे सो परसों कर, वो वाले, दैट काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिव। सो आप कैफीन कब लेते हो? कैफीन एज ए स्टिमुलेंट, आपको Right. स्टिमुलेशन, यू आर टायर्ड, यू कैन नॉट स्टार्ट द डे, तो आप कैफीन लेते हो। तो कैफीन मत लीजिए, बिकॉज कैफीन हेपेटोटॉक्सिक होता है। ठीक है, साइंस रिसर्च आजकल नई नई चीजें भी बोली, बट हेपेटोटॉक्सिक होता है, यानी आपकी बॉडी में फायर को बढ़ाएगा। उस समय तो बढ़ा देगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा, बट बेसिकली आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन देगा। फायर मीन्स इन्फ्लेमेशन, तो आप उसको मत लीजिए। आपको स्टिमुलेशन चाहिए ना, जिंजर ले लो जी, जिंजर ले लो। अच्छा, not shilajit. गर्मी में कैसे लोगे शिलाजीत आप? Okay, ginger. ठीक है, जिंजर अच्छा है, वो सब जगह काम आएगा। जिंजर ले लो आप, थोड़ा उसमें ब्लैक पेपर डाल लो, दो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट्स हैं। Lovely. आप टी बनाओ, वात पित्त कफ की टी वी मेक, उसमें वात के अलग है, वात यानी जो ऑलरेडी हरी भरी के अंदर है, उस बंदे के लिए कामिंग हाउस उसमें डाली। जो पित्त वाला जो गर्म है उसके लिए ठंडी डाली, जैसे हमने सिनेमन डाला, हमने क्या कहते हैं, थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, जीरा डाला हमने, उसमें इलायची डाली, मुलेठी लिक्विड डाली, तो कामिंग हो गया। जो कफ वाला है, यानी जिसको कैफीन चाहिए, उसको लो भैया, तुम जिंजर ले लो, तुम दालचीनी ले लो, और तुम ब्लैक पेपर ले लो, स्टिमुलेंट हर्ब्स दे दी, हो गया स्टिमुलेशन। प्लस ये जो आपने लिया ना कफा वाला, जो ये आपने जिंजर प्रिपरेशन लिया, इससे आपका डाइजेशन भी स्ट्रांग होगा। आपने कई लोगों को देखा, उनको भूख ही नहीं लगती। अपने बच्चे, मेरे को नहीं खाना, भूख ही नहीं है, रुक जा अभी, थोड़ा सा जिंजर हनी में मिला के उसको चटा दो, खाने से 2 घंटे 1 डेढ़ घंटे पहले, ऐसा खाएगा कि खाना कम पड़ जाएगा। स्टिमुलेंट डाइजेशन को स्ट्रांग करेगा। Beautiful. And I guess what I'm hearing here is कि instead of going for that caffeine and, don't have that coffee, understand कि आपका बात पित्त कफ क्या है, and might as well get a Ayurvedic herbal tea or
concoction that is actually healthy for you, that's going to improve your digestion system and make you naturally healthy versus putting an artificial chemical in your body that then your body has to process, create toxins, and create more issues for your body and your brain to handle. जो herbs हैं वो आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव एड का काम करती हैं, जी सप्रेस नहीं करती हैं। कैफीन रात को पियेंगे स्टिमुलेशन हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। जी बट उसी जगह अगर आपने उस आलमंड मिल्क में या दूध में अदरक या दालचीनी मिला के पी लिया तो आपको नींद भी आएगी और डाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा। love it. Love it. I think this has been so exciting and so interesting. And really what I'm taking back like every conversation is just how rich our Indian culture is. And there's so much knowledge and there's so much information and things that actually not just it's not about curing the symptom. It's not कि बुखार हो गया बुखार को ठीक कर दो, स्किन इन्फेक्शन हो गया उसको ठीक कर दो, स्ट्रेस है तो एंटी एंजाइटी मेड ले लो. It's actually healing yourself from inside and we can do that through conversations, consultation, but actually understanding कि हमारी body क्या है, उसको क्या चाहिए, and get practitioners and Very important, please love your body. Please love your body. Don't take it for granted. Believe me, छोटे मोटे stresses, छोटा मोटा improper diet, ये सब हमें उस समय पता नहीं चलता, but we as a practitioners, we see hundreds of patients every day and we really feel this pain जी कि हमारे तो culture में ये है. Why are we missing it? So Why are we- please take care of your body. Please take care of yourself. thank you and have your meals with your families. I think that's one of the most important. Chaliya, absolutely fantastic. Thank you so Thank much, you. Dr. Thank you. Thank you very much.